اصل مضمون جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں وہ بات تھی جو اس وقت میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بچہ فلاں پیش گوئی کے مطابق میرے گھر میں پیدا ہوا ہے، اور وہ الہام دوبارہ حضرت مسیح السلام کے اوپر ہوتا ہے، لیکن حضرت مسیح السلام یہی کہتے ہیں کہ اس پیش گوئی کے مطابق میرا لڑکا یہی ہے۔ اگر یہ بات میں آپ کو حضرت مسیح السلام کی تحریرات سے نکال کے ثابت کر دوں، اس کے اوپر غور کریں گے آپ؟ جی آپ یہ مجھے دکھا دیں کہ حضور علیہ السلام کا میں ہی اقتباس پڑھ دیتا ہوں۔ آپ کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ جو میں بالکل آ رہی، میں بات سمجھ گیا ہوں آپ کی، میں وہی آپ کے نا آگے یہ پڑھنے لگا ہوں۔ یہ آپ کتاب کا حوالہ کھول لیں، یہ میں نا روحانی تذکرہ صفحہ نمبر 222 ہے، اور بحوالہ مجموعہ اشتہارات جلد سوم صفحہ نمبر ہے اس کا 557۔ ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ ٹھہریں، بات میں کر رہا ہوں، دلیل میں دینے لگا ہوں، حوالہ آپ پڑھیں۔ میں نے تو حوالہ بتایا بھی نہیں ہے۔ نہیں میں آپ کو نا، آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو کہا ہے نا کہ وہ نا کہتے تھے، لیکن میں اس کی تردید کر رہا ہوں کہ حضور نے نہیں کہی یہ بات۔ تو کرنے دیں، آپ تردید کریں، میں آپ کو تردید کرنے سے ہرگز نہیں روکتا۔ حضور نے یہ بات نہیں کہی۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ میں وہ حوالہ پڑھنے لگا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، پہلے مجھے بات تو کرنے دیں، اس کے بعد آپ حضور کا حوالہ پیش کریں۔ جی کریں آپ بات، چلے ٹھیک ہے آپ کر لیں بات۔ آپ پہلے حوالہ آگے جا کے دے دیں۔ حضور نے یہ بات کی نہیں ہے تو پھر میں اس لیے حوالہ میں نے نکالا ہے۔ چلے ٹھیک ہے، آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ مجھے یہ کہیں کہ بھائی جو حوالہ تم دے رہے ہو وہ حوالہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، حضور نے ایسی بات کہی نہیں، لیکن پہلے مجھے اس بات کا حق تو ہے نا کہ میں حوالہ پیش کروں۔ جی کریں آپ حوالہ دیں، ٹھیک ہے۔ بات ابھی میں نے کی نہیں، آپ پہلے کہہ رہے نہیں یہ ہوا ہی نہیں، مجھے بات تو کر لینے دیں۔ جی ٹھیک ہے، آپ دیں وہ جو آپ حوالہ دینا چاہتے ہیں دیں۔ جزاک اللہ۔ آپ کے پاس روحانی خزائن موجود ہے؟ جی آپ جلد بتائیں مجھے۔ جی ٹھیک ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 15۔ جی ٹھیک ہے۔ کتاب کا نام ہے تریاق القلوب۔ جی صفحہ نمبر ہے 220۔ صفحہ 220، یہ جلد 15؟ جلد 15، کتاب تریاق القلوب، اور صفحہ نمبر 220 بمطابق جدید ایڈیشن۔ 220؟ ہاں جی 220۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک جی، کھل گیا میرے سامنے۔ کھول گیا ہے؟ ہاں جی۔ صفحے کے شروع پہ کیا لکھا ہے؟ اور میرا دوسرا لڑکا۔ شروع ہو جائیں، آگے پڑھنا۔ ڈاکٹر صاحب عبارت کو پورا پڑھیں، میں سن رہا ہوں۔ آپ پڑھیں۔ چلے میں پڑھ دیتا ہوں۔ جی جی، آپ نے حوالہ دینا ہے نا؟ بالکل جی، کوئی ایسی بات نہیں۔ اور میرا دوسرا لڑکا جس کا نام بشیر احمد ہے، اس کے پیدا ہونے کی پیش گوئی آئینہ کمالات کے صفحہ 266 میں کی گئی ہے، اور اس کتاب کے صفحہ 262 کی چوتھی سطر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پیش گوئی کی تاریخ 10 دسمبر 1892 ہے۔ اب یہاں پہ حضرت صاحب ایک اپنے دوسرے بیٹے حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کی پیدائش کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پیش گوئی کی۔ وہ پیش گوئی 10 دسمبر 1892 کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر الہام فرمائی۔ تذکرہ کھولیں ذرا۔ جی جی، میرے سامنے میں کھولا ہوا ہے، تریاق القلوب کتاب ہے، روحانی خزائن جلد 15 صفحہ نمبر 220 پر میرے سامنے ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں تذکرہ بھی اپنے پاس رکھیں، ٹھیک ہے۔ آگے حضور فرماتے ہیں، اور پیش گوئی کے الفاظ یہ ہیں: یأتی قمر الانبیاء وامرک یتأتی یسر اللہ وجہک وینیر برہانک سیولد لک الولد ویدنا منک الفضل ان نوری قریب۔ دیکھو صفحہ 266 آئینہ کمالات اسلام۔ یعنی ابھی حضور ترجمہ کر رہے ہیں، یعنی نبیوں کا چاند آئے گا اور تیرا کام بن جائے گا، تیرے لیے ایک لڑکا پیدا کیا جائے گا اور فضل تجھ سے نزدیک کیا جائے گا، یعنی خدا کے فضل کا موجب ہوگا، اور نیز یہ کہ شکل و شباہت میں فضل احمد سے
जो दूसरी बीवी से मेरा लड़का है मुशाबियत रखेगा, और मेरा नूर करीब है, शायद नूर से मुराद पिसर मऊद हो। इस पेशगोई के मुताबिक वो लड़का पैदा हुआ जिसका नाम, मुझे इबारत पूरी पढ़ लेने दें। यहाँ एक मिनट में, सॉरी, यहाँ ना ये जो हजूर ब्रैकेट देते हैं ना, इसमें पिसरे मऊद से मुराद क्या है, ये बाद में मैं पूछूंगा, ठीक है? जरूर पूछेगा, और ये ब्रैकेट वाली दलील आप ही की है, ये भी याद रखिएगा। जी जी। चलें, इस पेशगोई के मुताबिक वो लड़का पैदा हुआ जिसका नाम बशीर अहमद रखा गया। इस पेशगोई के मुताबिक कौन पैदा हुआ है? बशीर अहमद। बशीर अहमद, जो जिन्होंने ये जिसको वो उन्होंने तो दावा नहीं किया, लेकिन कहते हैं जमात में कमरुल अंबिया। वो दावा करे ना करे, हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम एक बात फरमा रहे हैं। जी जी, ठीक है। अब इस बात को गौर से सुने। आपने कहा था ऐसा कोई हवाला नहीं, मैं आपके सामने अभी हवाले के साथ बात कर रहा हूँ। जी जी, ठीक है, पढ़ते जाए, मैं मेरे सामने खुला हुआ है। हजरत साहब फरमाते हैं इस पेशगोई के मुताबिक वो लड़का पैदा हुआ जिसका नाम बशीर अहमद रखा गया, और दर हकीकत वो लड़का सूरत के रूह से फजल अहमद से मुशाबे है, जैसा कि पेशगोई में साफ इशारा किया गया। और ये लड़का पेशगोई की तारीख 10 दिसंबर से 1892 से तखमीनन 5 महीने बाद पैदा हुआ। रूहानी खजाएं जल्द नंबर 15 तिरयाकुल कुलूब सफा नंबर 220। ये जो जिस किताब का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये गालबन किताब 99 की है, 1899 के करीब ये लिखी गई है। जबकि हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि ये जो इल्हाम है, याती कमरुल अंबिया व अमरुका यतअत्ता, ये सबसे पहले आपके ऊपर हुआ है 10 दिसंबर को। यही इल्हाम हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के ऊपर 1896 में हुआ, और उसके बाद 1906 में हुआ। लेकिन हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने कहीं पे ये नहीं लिखा कि इससे मुराद मेरा ये लड़का मिर्जा बशीर अहमद नहीं है, कहीं पे भी नहीं लिखा। ये इसका मैं जवाब दूं, और हजूर ने खुद ये फरमाया है, और हजूर ने खुद, अब ये देख लें, हजूर की ये इबारत इस लड़के के पैदा होने के बाद की है, और ना सिर्फ इस लड़के के पैदा होने के बाद की है, बल्कि इस लड़के के पैदा होने के बाद लड़का पैदा हुआ है 1893 में, 1893 के अप्रैल के महीने में। पहली पेशगोई हुई उससे 5 महीने पहले, दिसंबर 1892 में। जी ठीक है। फिर 1896 में दोबारा ये इल्हाम हुआ, ठीक है, याती कमरुल अंबिया। इस इल्हाम के ऊपर भी जब 3 साल का अरसा गुजर गया, तब जाके हजरत साहब ने ये किताब लिखी तिरयाकुल कुलूब, और उसमें आप क्या बयान फरमाते हैं? इस पेशगोई के मुताबिक जो लड़का पैदा हुआ वो मेरा लड़का बशीर अहमद है। और आपने इलाही जो फेली एक शहादत थी वो भी पेश कर दी। फरमाया इल्हाम में लिखा था कि ये जो लड़का होगा इसकी शक्ल फजल अहमद, जो कि आपकी पहली बेगम जो थी, उनसे जो आपका दूसरा लड़का था उससे मिलती होगी। आपने ये लिखा है कि खुदा के, आप ये लिखते हैं कि हू बहू इसी तरीके से हुआ। जब ये लड़का बशीर अहमद पैदा हुआ, इसकी शक्ल अपने सौतेले भाई फजल अहमद से मिलती है। ना सिर्फ ये कि हजरत साहब ने एक बात की, आप ये बात करते हैं, या जंबा साहब ये बात पेश करते हैं कि हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के ऊपर इल्हाम हुआ हो, उसके बाद एक लड़का पैदा हुआ हो, और दोबारा वही इल्हाम होता रहा हो। ऐसा हो नहीं सकता कि उससे मुराद वही लड़का हो जो एक दफा पैदा हो गया और उसकी पैदाइश के बाद भी इल्हाम चल रहा है। जी ठीक है, आपकी बात खत्म हो गई। मौद अलैहिस्सलाम की तारी रात से खुद साबित होता है। आपने हजरत साहबजादा मिर्जा बशीर अहमद साहब यानी कमरुल अंबिया के बारे में कहा, इस पेशगोई के मुताबिक जो लड़का पैदा होने वाला था वो मियां बशीर अहमद साहब। जी एक बात, ये आपके बात खत्म हो गई है मरबी साहब? जी आप बात करें आगे। अब मैं आपकी बात नंबर 1, मैंने ना कुरान करीम से वो हवाले जो दिए, दलील मैंने दी थी कुरान करीम से। आपने कुरान करीम से देने की बजाय आपने हजरत हकम और अदल की दलील दी है मुझे। चले मैं इसको ही ले लेता हूँ। आपने जब बात की थी ना, देखें, आपने जब बात की थी कि एक लड़का पैदा हुआ उसके बावजूद भी ये इल्हाम होते रहे, तो ये आपने कोई कुरानी आयत पेश नहीं थी की, आपने भी हजरत मसीह इस्लाम के इल्हाम पेश किए हैं। जब उसके एक बात मुझे ये नहीं समझ आती है, आप कोट कर रहे हैं हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की तहरीरात से एक बात, जब मैं उन्हीं तहरीरात से आपकी बात का गलत होना साबित करता हूं तो क्यों वहां से भागते हैं? नहीं मैं भाग नहीं रहा। आप मुझे ये बता दें, या तो आप ये कहते हैं कि हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को, जिस तरह की अक्सर मैंने जितनी किताबें पढ़ी हैं जंबा साहब की, हर दूसरी तीसरी बात के ऊपर वो ये कह देते हैं हजरत साहब को इज्तिहादी गलती हुई है, या तो आप कह दें कि यहाँ पे भी इज्तिहादी गलती है। मैं वो आप ये देखें यहाँ पे भी हजरत साहब को इज्तिहादी गलती हुई है। देखें, ये इज्तिहादी गलती इस वक्त आप कर रहे हैं, मैं वही आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारी दलील ये है, हमारी ये दलील है कि वो जब अल्लाह ताला किसी नबी को मुबशर वजूद की बिशारत देता है, वो वजूद बिशारत के बाद पैदा होता है।
ये जो इल्हाम हुआ है इससे मुराद ये कमरुल अंबिया मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद है ही नहीं, बशीर अहमद अहमद साहब है ही नहीं कमरुल अंबिया। वो क्यों नहीं है? वो मैं हजरत नहीं, देखें एक मिनट मेरी बात देखें, मैं आपके हवाला जब आप पढ़ रहे थे ना, की बात मानो, देखें जब आप बात कर रहे थे मैं नहीं बोला, मैंने मुकम्मल आपकी बात सुनी, आप मेरी सुने। ठीक है। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं शायद नूर से मुराद पिसरे मऊद ब्रैकेट में लिखी है ये बात हजूर ने। जब हजूर ने ये बात कर दी है कि शायद, तो लेकिन ये बाद में जब बिशारत हो गई तो हजूर ने शान अंबिया के मुताबिक ये इल्हाम हजूर करते रहे। हजूर ने अपने किसी इल्हाम में ये नहीं कहा कि इससे मुराद ये है कि मेरा फलां बच्चा कमरुल अंबिया का इल्हाम फलां मेरे बच्चे के ऊपर फिट होता है। ये हजूर ने कहीं तहरीर नहीं लिखी। इस हवाले में पढ़ के क्या सुनाया आपको? हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं शायद नूर से मुराद पिसरे मऊद हो, यानी पेश गोई 20 फरवरी 1886 की बात कर रहे हैं। पूरी इबारत पढ़ी है। हजूर कह रहे हैं इस लड़के के करीब हो सकता है खुदा का नूर हो, और खुदा के नूर से मुराद आपने मुस्लिम मऊद है, मुस्लिम मऊद का लफ्ज आपने मुराद लिया। आपने कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि जो ये लफ्ज नूर है, ठीक है, इससे मुराद ये कमरुल अंबिया है जिसके जिक्र इस इबारत में हजरत साहब कर रहे हैं। नहीं, बात एक बात ये देखें, बात पेश कर रहे हैं लेकिन बात गलत पेश कर रहे हैं। नहीं, बात आप कर रहे हैं जो ना, आप मुझे दलील देना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि बशारत के अगर होता ये कमरुल अंबिया तो बाद में अल्लाह ताला इसे कमरुल अंबिया का इल्हाम ना करता। कुरान की दलील के मुताबिक जो मैं दलील दे रहा हूं, इससे साबित होता है कि ये कमरुल अंबिया ये शख्स है ही नहीं। मिर्जा बशीर अहमद अहमद साहब कमरुल अंबिया है ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनकी पैदाइश के बाद फिर इल्हाम कर दिया। यही तो मेरी दलील है। हजरत साहब को कह देना कि गलती लगी थी। हजूर तो फरमा रहे हैं, ये देखें ना, हजूर फरमाते हैं शायद नूर से मुराद पिसरे मऊद, शायद का लफ्ज इस्तेमाल करें। हजूर तो कह ही नहीं रहे इसको। डॉक्टर आमिर साहब गलत बात ना करें, इबारत मेरे सामने भी है, इबारत आपके सामने। देखें मैं तो आपको बता रहा हूँ कि ये हजूर ने लफ्ज गलत लिखा है, ये ब्रैकेट में जो लिखा है हजूर ने, इसका देखें ब्रैकेट में हजूर ने लफ्ज लिखा है पिसर मऊद। जी जी, ठीक है। अब इस पेश गोई में मैं जिस इबारत का जिक्र कर रहा हूँ उसमें बात हो रही है कमरुल अंबिया की। जी जी बिल्कुल। हजरत साहब ने जो इबारत मैंने पेश आपके सामने की है, जो आपने अभी पढ़ी भी है, इसमें एक जगह पे ये नहीं लिखा कि कमरुल अंबिया जो है इससे मुराद पिसर मऊद, यानी कि मुस्लिम मौत की तरफ हजूर ने इसमें इशारा यही नहीं है कि कमरुल अंबिया से मुराद वो है। आप इस बारे से ये अखज़ तो करना चाहते हैं लेकिन अखज़ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हजरत साहब ने ये बात नहीं की। मैंने जो दलील दी है वो आप देखें, मैंने दलील जो आपके आगे रखी थी ना मुरब्बी साहब, मैंने जो दलील रखी है आपके आगे कि जब अल्लाह ताला अपने किसी नबी को मुबशर वजूद की बिशारत देता है, वो बिशारत के बाद वजूद पैदा होता है। अगर वो पैदा हो जाए तो उसके बाद उसके मतलब अल्लाह ताला इल्हाम नहीं करता कि मैं आपको एक बच्चा दूंगा। अगर इसी तरह ये जब इसलिए साबित होती है, देखें आपकी बात, अच्छा चलें आप बोले, मैं आपकी बात सुनता हूं। मिसाल अल्लाह ताला ने अगर बिल फर्ज आपका मान भी लिया जाए कि नबियों का चांद आएगा, अच्छा वो तो पैदा हो गया था, किस दिन पैदा हुआ? हजरत मिर्जा बशीर अहमद अहमद साहब जो है ये पैदा कब हुए? अप्रैल 1893 में। 93 में ना, तो आप खुद ही कह रहे हैं कि बाद में अल्लाह ताला फिर कह रहा है कि यानी नबियों का चांद आएगा, अभी आया तो है नहीं। हाँ जी, और जबकि हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम खुद लिख रहे हैं कि इस पेशगोई के मुताबिक गो कि ये दोबारा मुझे हुई है, फिर भी वो लड़का जो था वो मियां बशीर अहमद साहब है। हजूर अलैहिस्सलाम नहीं, अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि नबियों का चांद है, कि यही तो मेरी दलील है कि वो जब बिशारत देता है अल्लाह ताला तो वो तो जब बिशारत के बाद वजूद आता है। अच्छा, और भी कुछ कहने तो आप बोल लें ताकि मैं आपकी बात पहले सुन लूं, उसके बाद फिर मैं जब जवाब दूंगा फिर आप सुन लेंगे। जी, इसके बाद फिर एक हजूर के घर में बच्चा पैदा होता है, हजरत मिर्जा शरीफ अहमद साहब। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद फिर चौथा बच्चा पैदा होता है, वो उसको हजूर कहते हैं कि ये बच्चा मेरा 20 फरवरी का जिक्र करते हैं। इसी किताब का जो अगला सफा 21 पर वो आपके सामने है, मैं पढ़ता हूँ। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं और मेरा चौथा लड़का जिसका नाम मुबारक अहमद है, इसकी निस्बत पेशगोई इश्तिहार 20 फरवरी 1886 में की गई। जी ठीक है, ठीक है ना। इन तीनों बच्चों को हजूर कह ही नहीं रहे कि ये 20 फरवरी 1886 में इनका जिक्र है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि खैर है। अच्छा जी, किधर की किताब मेरे पास का वाला नहीं, सफा नंबर 221 आपने कहा ना? जी 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 जी, हाँ जी, पढ़े ये पढ़ दिया हवाला मैंने, दोबारा पढ़ दें एक दफा।
हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं और मेरा चौथा लड़का जिसका नाम मुबारक अहमद है, इसकी निस्बत पेशगोई इश्तिहार 20 फरवरी 1886 में की गई। बाकी जो हजूर के बच्चे हैं ना, हजरत मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब, हजरत मिर्जा बशीर अहमद साहब या हजरत मिर्जा शरीफ अहमद साहब, इनका हजूर नहीं कह रहे। हजूर इस बच्चे का कह रहे हैं कि ये 20 फरवरी 1886 का बच्चा, जब बच्चा पैदा होता है तो हजूर इसके मुताबिक लिखते हैं कि ये 3 को 4 करने वाला है, और ये बच्चा भी वफात पा जाता है हजूर। अच्छा, आप मुझे ये बाद में अब मैं, जब ये बच्चा वफात पा जाता है ना, मैं एक हवाला मुझे पढ़ने दें, फिर उसके बाद आप बात करें। अच्छा ठीक है। जब ये बच्चा वफात पा जाता तो हजूर अलैहिस्सलाम एक इश्तिहार 5 नवंबर 1907 को देते हैं। फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, गौर से सुने। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लेकिन खुदा की कुदरतों पर कुर्बान जाऊं कि जब मुबारक अहमद फौत हुआ, साथ ही खुदा ने ये इल्हाम किया, इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलामिन हलीम यंजिल मुबारक, यानी एक हलीम लड़के की हम तुझे बिशारत देते हैं जो बमंजिला मुबारक अहमद होगा और उसका कायम मकाम होगा और उसका शबी होगा। बस खुदा ने ना चाहा कि दुश्मन खुश हो, इसलिए कि उसने बमजद वफात मुबारक अहमद के एक दूसरे लड़के की बिशारत दे दी, ता ये समझा जाए कि मुबारक अहमद फौत नहीं हुआ बल्कि जिंदा है। तज़किरा सफ़ा नंबर इसका है 622, बहवाला मजमुआ इश्तिहारात जिल्द कौम सफ़ा नंबर 557। तो हजूर तो ये खुद आपकी बात तो खत्म हो गई, आपने बात कर लिया। ये जो बच्चा, ये बिशारत हुई है ना, ये मंजिला मुबारक अहमद बच्चा पैदा होना, वो मुस्लिम मऊद है। आपने बात कर ली है। ये बिल्कुल मेरी बात खत्म हो गई। ठीक है, मैं अब तरतीब वार आपकी बात का जिक्र करता चला जाऊंगा जितने आपने नुक्ते उठाए हैं। ठीक है, अब आपने अगर कुछ ऐड करना हो अभी कर लें, नहीं फिर जब मैं बात खत्म कर लूं मैं दोबारा अपनी दलील दोहरा देता हूँ। आप कुरान करीम से कुरान करीम से मुझे एक ऐसी आयत दे दें जिसमें अल्लाह ताला ने किसी नबी को मुबशर वजूद की बिशारत दे दी और बिशारत के बाद वो वजूद पैदा हो गया, उसके बाद भी कहा हो कि मैं आपको एक ज़की गुलाम दूंगा या मुबशर वजूद दूंगा। वो एक दलील मुझे दे दें। भाई यही बात है या और भी कुछ करनी है? जी आप ये दलील दे दें मुझे, बस ठीक है, मेरी बात खत्म हो गया, अब आप करें बात।